Hello everybody, welcome back to this channel. Today in this video we are going to start with our next exercise, that is exercise 13.2. So coming to the first question, the question is draw the graphs for the following tables of values with suitable scales on axis. तो हमें suitable scales on axis इसका क्या मतलब है, वो जब हम करेंगे तो पता चलेगा. here what we have to do, cost of apples हमें हमारा ए पार्ट है, इसमें हमें एक टेबल दे रखी है, उस टेबल को देखकर हमें एक ग्राफ बनाना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ये दो एक्सेस हमारी हो गई, ठीक है. दीज आर द टू एक्सेस. अब जो ये स्केल्स की बात कर रहे हैं, वो स्केल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं. तो स्केल क्या हो जाएगा हमारा, कि हमें कितना डिस्टेंस लेना है ऑन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. सो हमें कितना डिस्टेंस लेना है, दैट इज द स्केल. अब नंबर ऑफ एप्पल्स में तो हमें डिस्टेंस लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी 1 2 3 4 5. यहाँ पर इन कोस्ट व्हाट वी हैव टू डू 5 10 15 20 25, these all are the multiples of 5, so we can take the distance of 5 in each. So here we are writing the number of apples and here we are writing the cost in rupees. So let's start with 1 2 3 4 and 5. So 1 2 3 4 5. Then we have here 5 का distance लेना है, so 5 10 15 20 and 25. So 25 20 15 10 and 5. Now we have to plot these. तो number of apples अगर हम ले रहे हैं 1, अगर हम एक एप्पल ले रहे हैं तो हमें 5 रुपीज पे करने हैं. So 1 and 5. We will join these. Now the next is, अगर हमें 2 एप्पल खरीदने हैं तो we need to pay 10 rupees. So that will be 2 with 10 here. Next is 3 4 15. 15 for 3 apples. So 15 here. Next is 24 4 apples. So 24 4 apples. Then 5 for 25 apples. Okay, so now we will join all these. तो हमें क्या मिल रही है, एक straight line, ठीक है. So this was the A part. Now let's come to the next part. Now coming to the next part, that is distance traveled by a car. So distance traveled by a car में हमें टाइम दे रखा है, हमें डिस्टेंस दे रखा है, ठीक है. तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है इन दोनों को लेकर. So what we will do, first of all axis, then यहाँ पर on x axis, this is x axis, this one. So on x axis we will take time in hours. Okay, so 6 a.m. then 7 a.m. then 8 a.m. and then 9 a.m. Then we have distance. अब distance के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कितने का हमें स्केल लेना है. स्केल कितने का लेंगे हम, 4 का, ठीक है, बिकॉज दीज ऑल आर दी मल्टीपल्स ऑफ 4. अगर 0 को हटा दे तो, सो 40 40 80 120 and then 160. So 6 AM पर हमारा कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, 40. देन 7 पर 80, 8 पर हमारा कवर हुआ है 120 एंड 9 पर हमारा कवर हुआ है 160. Okay, so now we will join them all and we again get a straight line. We again get a straight line. So this, अब इस पार्ट में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस भी है. So now let's come to those questions. Now coming to the questions, first part we have, how much distance did the car cover during the period 19:30 AM to 8 AM? Sorry, 7:30 AM to 8 AM. 7:30 मतलब कि यहाँ पर इतने टाइम से उसने कितना डिस्टेंस जो है उसने ट्रेवल किया. नाउ हियर वी कैन सी दैट हमने कितने का यहाँ पर गैप लिया है, हमने 40 का गैप लिया है. 40 + 40 + 40 + 40, इट इज लाइक दिस. सो 40 का हमने गैप लिया है, तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का भी कितना होगा, 40.
ठीक है, अब हमने यहां पर क्या कर दिया, इफ वी ज्वाइन दिस, तो इस पॉइंट पे ये हमारा क्या है, ये, और इसको अगर हम यहां से ज्वाइन करें, सो दिस इज the half of this. This is coming in the middle of 120 and 80, and ये 8 वाला हमारा कहाँ है, इस पर है. So if we join this, it is coming to this. तो यहां से यहां तक मतलब कि इसका आधा है पूरे का, तो ये पूरा कितना है 40. So 40 का हाफ कितना हो जाएगा 20. So the answer is 20 kilometers. Okay, so this was the first part. Now the next one says, what was the time when the car had covered a distance of 100 kilometers since its start? अब हमें 100 किलोमीटर देखना, उसने कब उसने 100 किलोमीटर कवर कर चुकी थी गाड़ी. So 100 किलोमीटर हमें यहाँ पर क्लियरली नहीं दे रखा है, बट व्हाट वी हैव टू डू इज, हमें 80 और 120 के बीच में 100 मिलेगा. ओके, सो 80, 90, 100, then 110 and 120. Okay, so where is 100 lying? See, this is 90, then this is 100, then this is 110 and this is 120. तो ये जो पॉइंट है हमारा मतलब कि मिडिल, दिस इज 100. तो 100 का अगर हमें देखना है, सो वी विल गो दिस साइड. अब 100 इस साइड हम जाएंगे तो हमें क्या दिखेगा, यहां पर दिस पॉइंट, राइट, ये थोड़ा सा मतलब टेढ़ा है. ओके, तो यहां पर मीट होगा. सो दिस इज द हाफ ऑफ दिस, मींस 7:30. ओके, 7:30 इज द आंसर, 7:30 a.m. So this was the B part. Now let's come to the next part. Now coming to the next part, that is interest on deposits for a year. तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, इंटरेस्ट जो है हमें मिल रहा है डिपॉजिट करने पर. डिपॉजिट और सिंपल इंटरेस्ट हमें दे रखा है. दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट. सो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ. दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस. सो डिपॉजिट हमें रुपीज़ में दे रखा है एंड सिंपल इंटरेस्ट भी रुपीज़ में. सो सिंपल इंटरेस्ट को हम वाई एक्सिस पर लेंगे, डिपॉजिट को एक्स एक्सिस पर. So this will be 1000, 2000, 3000, 4000 and 5000. So this is simple, this is deposit in rupees. Now we have simple interest. Simple interest in rupees. So simple interest के लिए हम यूनिट क्या लेंगे, इसमें क्या डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है. सो वी विल टेक 80 का डिफरेंस है, सो 80 गैप हम लेंगे. So this will be 80, this will be 160, this will be 240, this will be 320 and 400. Now 1000 के लिए हमारे पास है 80. So this is, यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे. 2000 160, 3000 we have 240, यहाँ पर 3000, 4000 we have 320 and 5400. So again we get a straight line. Now we have been given some questions, so let's come to those questions. Now coming to the first part, does the graph pass through the origin? So yes, it passes through the origin. मैंने यहाँ पर origin से join नहीं किया था, but हर एक ग्राफ origin से ही start होता है. Okay, x axis also comes to 0 and y axis also comes to 0, comes to n, starts from this origin. Okay, so the answer is yes. Next we have used the graphs to find the interest on rupees 2500 for a year. अब एक साल के लिए, सभी एक साल का है, तो हमें इस ग्राफ को यूज करके बताना है कि हमें जो है, अगर हम इंटरेस्ट फाइंड करना है अगर हम 2500 डिपॉजिट कर रहे हैं. सो 2500 हमें यहाँ का गिवन है, बिकॉज दिस इज द मिड पॉइंट. सो 2500 ये कहाँ पर मीटर है, यहाँ पर. ओके, दिस ऑल्सो विद द मिड पॉइंट. अब ये जो पॉइंट है, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ दीज
2। तो ये भी यहाँ पर मिड पॉइंट है अगर इसका, तो यहाँ का भी ये मिड पॉइंट होगा। अब हमें ये फाइंड करना है कि इसका मिड पॉइंट की वैल्यू क्या है। जो वैल्यू होगी वही हमें इंटरेस्ट फाइंड करना है, बिकॉज दिस इज अ ग्राफ। सो मिड पॉइंट का हम कैसे फाइंड करेंगे, 240 प्लस 160 अपॉन 2, बिकॉज दिस इज द फॉर्मूला। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अपर लिमिट इज दिस वन, this is the lower limit. In these two, this is upper limit, this is lower limit. Okay, so if we add this, this will be 0, this will be 0, and this will be 4. So this will be 200. So the answer is rupees 200. Okay, now the next part we have, to get an interest of rupees 280 per year, how much money should be deposited? तो अगर हमें rupees 280 per year हमें चाहिए है इंटरेस्ट के तौर पर, यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखी है 280. 280 is the midpoint of this 240 and 320. So we have to tell the deposit. Now again we will come this side. तो यहाँ पर, अब यहाँ पर ये मिड पॉइंट है तो यहाँ का भी मिड पॉइंट हो जाएगा. So that will be 3,500 rupees. Okay, so hope this is clear. This was the C part. This was the last part for this question. Now let's come to the next question. Now coming to the next question, that is draw a graph for the following. अब हमें इनके लिए एक ग्राफ ड्रॉ करना है. टेबल दे रखी है अगेन. सो हमें अब की बार ये भी पूछा है, इज इट अ लीनियर ग्राफ? तो लीनियर ग्राफ भी देखेंगे क्या होता है. साइड ऑफ स्क्वायर एंड पेरीमीटर हमें गिवन है. साइड ऑफ स्क्वायर इन सेंटीमीटर, पेरीमीटर इज आल्सो इन सेंटीमीटर, सो वी डोंट नीड टू कन्वर्ट इट. नाउ ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, स्टार्ट करते हैं. So this is the x-axis and this is the y-axis. Now x-axis पर हम क्या लेंगे, the side of square. ठीक है, जितनी उसकी साइड है, अगर जितनी उसकी साइड है उसका साइड के अकॉर्डिंग उसका पेरीमीटर कितना आ रहा है. So 2, 3, 4, 5 and 6. 2, 3, 3.4, 5 and 6. अब यहाँ पर 3.5 हमें दे रखा है, तो 3.5 होगा 4 और 3 के बीच में. ओके, तो वी विल राइट इट 3.5. दिस इज साइड ऑफ स्क्वायर इन सेंटीमीटर, देन पेरीमीटर इन सेंटीमीटर. सो पेरीमीटर के लिए हम डिस्टेंस कितना लेंगे, 2 का डिस्टेंस लेते हैं. ओके, सो दिस वन 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24 यहां तक. सो नाउ 2, 8, 2, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 and 24. So 2, 8, 2, 8 यहाँ पर. Then 3 we have 12. 3 के लिए है perimeter is 12. Next is 3.5, 14. 3.5, 14. Next 5 के लिए है 20. So 5, 20. Then last is 24 here. अब हमें इसको ज्वाइन करना है. नाउ इज दिस अ लीनियर ग्राफ? इससे पहले क्वेश्चंस में हमने जितने भी ग्राफ्स किए दे वर लीनियर. ये लीनियर नहीं है. ओके, बिकॉज इसमें अगर यहाँ पर मान लो आपकी 1 यूनिट से वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पर भी 1 यूनिट से होगी, देन इट विल बी लीनियर. बट यहाँ पर ये लीनियर नहीं है. सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज, अब यहाँ पर भी हमें साइड ऑफ स्क्वायर दे रखा है और अब की बार एरिया दिया है. सो सबसे पहले कर लेते हैं ड्रॉ.
दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. नाउ यहाँ पर एक्स एक्सिस पर हम क्या लेंगे, साइड ऑफ स्क्वायर. सो दिस इज 2, 3, 4, 5 and 6. Side of square and then the area. So here अब यहाँ पर यूनिट हम क्या लेंगे, यूनिट हम ले रहे हैं 4. ओके, सो नाउ 2, 4. साइड, अगर साइड का की लेंथ क्या है, 2 है, सो दैट इज 4. नेक्स्ट इज 3 के लिए है 9. अब 9 का होगा 8 से, 8, 9, 10, 11 एंड देन 12. सो ये होगा 9 here. Now the next is 4, 16. 4, 16 here. Then 5, 25. 25 होगा 24 से ऊपर. So this is here. Next is 6 के लिए 36. That is here and this here. Now we will join this. यहाँ पर origin से भी join कर देंगे. So this is the graph. So this was the second question. This was the last question for this exercise. With this we complete our chapter. If you have any doubt, any doubts in this chapter, so you can leave it in the comment box. I will meet you in the next video. Till that, take care.